प्यार भरी सत श्री अकाल दोस्तां नूं। दोस्त इंजॉय कर रहे ने युववाणी प्रोग्राम तो हुण कैंपस लैके मैं विपिन सुमन हाजिर हो चुकिया। दोस्तों ਵੱਖ-ਵੱਖ विद्यक संस्थानां दे विच मुकाबले करवाए जाते हैं जिन्हां दे विच भाषण अते कविता मुकाबले हुंदे ने। सो इसे ही लड़ी के तहत अज असीं आण पहुंचे हाँ SD कॉलेज ऑफ वुमेन्स जलंधर विखे। सो अज इत्थों दे बच्चों के असीं विचार जाणांगे भाषण अते कविता के जरिए। सो बिना किसी देरी दे आओ जी फिर तुहानूं सिद्धा लै चलदे हां उन्हां बच्चों दे कोल। ਅੱਜ 75 ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਹੀ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਕਲਾਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੋਇਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। और सब तो पहला मैं साडी जी स्टूडेंट BCom 3rd सैम दी ईशा छाबड़ा मैं उन्होंने बुलानी हाँ कि वो अपने विचार जोड़े ने वो इस बारे रखन। What a beautiful day it is, and I'm so happy to be sharing it with you. This is Isha Chabra from 2nd year Commerce Department. Respected teachers and my dear friends, greetings everybody. Oops, sorry, greetings everybody, because I was told that girls don't raise their voice. Today I am here to talk about what the society made me feel as a girl. Well, let me begin with myself. I am the only daughter to my parents. When I was young, I often heard my father used to say he wished he had a son and left me into perplexion as to why people prefer sons than daughters. Aren't daughters more cute, charming, beautiful? But today, here I stand in front of you all knowing how difficult it is to raise up a girl child in a society like this. Well, when I tell my parents that I wish to go out, I am thrown several questions in front of me. Where are you going? With whom are you going? When are you going? When are you coming back? All add a stretch. And when I deny to answer these questions, I am told that if I were a boy, I wouldn't have been imposed so many questions. India is known as Bharat Mata, right? Not Bharat Pita. Then how on earth did India become the 4th most dangerous place for women to reside in? As per the recent survey, 69% of children are being sexually harassed. That is 1 out of 2 children are being sexually harassed at their early ages. By now, you would have found me to be a feminist. But what does feminism means? A word mistook most of the times. Feminism, by definition, means giving equal rights and importance to both men and women. Do you know how a housemaker is introduced to the society? Well, meet her. She's a homemaker and she doesn't work. Mom, please shut up and stop irritating me. How many of us sitting here have guts to tell this to our father? We live in a society where we teach our children, my son, boys don't cry. We must have instead taught them, my son, don't make girls cry. Of course, there are men who respect and worship women. Makinda salute to you guys. People are now getting more aware of their rights and what they can do in a free society. It has been noted when men and women get the same position and participates equally, society progresses exclusively and creates a landmark. Even when community reaches gender equality, male and female get the same scopes and privileges in health, education and political aspect. Even in the family, when men and women are treated in the same way, it is the best place to grow, learn and add great values. Most importantly, the shame of divorce and abuse must be thrown out of window. Parents must teach their daughters it is okay to come home divorced rather than in a coffin. There are many goals in a woman's life, but the first and foremost that every woman should follow your dreams. Your dream might be any: moving near the ocean, learning a new skill, starting a business. Commit yourself to it fully. Thank you. Have a nice day. नेक्स्ट स्टूडेंट मानसी शर्मा BCA 3rd सैम। इन्हों का टॉपिक है द न्यू शी। Hello and good morning to everyone. I am Mansi Sharma from class BCA semester 3 in PCMSG College for Women. Today I am here to talk about the topic the new she. In this topic I want to share my futuristic view about empowered Indian girl. And so firstly I want to tell about what is the true meaning of empowered. So empowered means to give power or license to someone to do something
And when we say women's empowerment, that means promoting the women's sense of self-worth and their ability to determine their own choices. And according to me, financially, women should be financially independent, because if she financially independent, then she will be empowered. It doesn't matter who your father is, who your brother is, who your husband is gonna be, but you should be financially independent. And I read these lines somewhere that says, a man is not a financial plan for do something. Your financial success is up to you. एंड एक लड़की तभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकती है जब वो अपनी ग्रेजुएशन तक की डिग्री को कंप्लीट कर पाए या अपनी किसी स्किल पे अच्छे से काम कर पाए जिससे वो काफ़ी अच्छा अर्न कर पाए. इफ़ यू रियली वांट टू सी अ गर्ल्स एम्पावर, then you and your society have to increase your orthodox mindsets tower. When a girl child born in our society, parents are going to collecting and saving the money for their marriage, but अगर यही पैसा उसकी मैरिज के अलावा अगर उसकी पढ़ाई पर, उसको बनाने में, उसके फ्यूचर को बनाने में लगाया जाए तो एक लड़की एम्पावर हो सकती है. सो मेरी ये अपील है सभी इंडियन पेरेंट्स से दैट डोंट लेट योर डॉटर्स डाउन एंड दे विल नॉट लेट यू डाउन. थैंक यू एवरीवन. नेक्स्ट कृतिका, BCA सेम थर्ड. इनका टॉपिक है माई ड्रीम इंडिया. Good morning everyone. My name is Kritika. I am from BCA, third semester. My topic is My Dream India. As we all know, India is one of the largest countries in Asia. Due to its huge population and large area, India has been very diverse in its culture, climate and religion. In spite of these diversities, India is one. India has a rich past, but today it is struggling to find its identity. My dream India is where everyone is equal in religion, race, culture and gender. My dream India is where every citizen will be following law and order. There will be cleanliness and there will be no discrimination, no favorism or dishonesty. In my dream India, every citizen will enjoy opportunity according to their capabilities. There will be no need of reservation anymore. In my dream India, every woman will be equal, safe, respected and employed. There will be no place for toxic masculinity and everyone will be following feminism. In a perfect India, everyone's opinion will be heard irrespective of their age, gender and sexuality. To achieve this, we have to get rid of capitalism, corruption, xenophobia, homophobia and injustice. On the side note, this is possible with a better education system and better upbringing of children. Thank you. नेक्स्ट है स्वाति, BCom FS थर्ड सेम. इनका भी टॉपिक है माई ड्रीम इंडिया. राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है. राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है. जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है. सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है. मेरा नाम स्वाति शर्मा है और मेरा आज का विषय मेरा लक्ष्य भारत है. मेरा लक्ष्य भारत से मेरा मतलब आत्मनिर्भर भारत से है. आत्मनिर्भर भारत का सही मतलब किसी दूसरे पर निर्भर ना होकर खुद पर निर्भर होना है. किसी भी राष्ट्र की शक्ति उस देश की आत्मनिर्भरता में है और एक आत्मनिर्भर भारत ही अपने देश को आगे बढ़ा सकता है. आत्मनिर्भर भारत से सबका यही मतलब होता है कि सबका काम और जो भी वो विकास कर रहे हैं देश के लिए उसमें वो अपना योगदान डाल सके, क्योंकि एक आत्मनिर्भर भारत ही अपने देश को आगे बढ़ा सकता है. हमने ये देखा है कि कई लोग अपने घरों में छोटा मोटा काम करना शुरू कर देते हैं, जैसे घड़े बनाना, छोटी मोटी कारीगरी. और आजकल तो जब पीपी किट, जब हमारे देश में इस चीज़ की कमी हो रही थी तो ये भी देश ने खुद ही बनाना शुरू कर दिया. और बनाना ही नहीं बल्कि दूसरे देशों को भी भेजना शुरू कर दिया है, जिससे ये आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत हो चुकी है. अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी.
ए भारत तुझको आत्मनिर्भर होना है, ए भारत तुझको आत्मनिर्भर होना है। धरती ये फिर से उगलेगी सोना, धरती फिर से उगलेगी सोना, खेतों को उर्वर होना है। सोने की चिड़िया अब ना तू बन, सोने की चिड़िया अब ना तू बन, सोने का अंबर तुझे होना है। ए भारत तुझको आत्मनिर्भर होना है, ए भारत तुझको आत्मनिर्भर होना है। धन्यवाद। नेक्स्ट स्टूडेंट है अर्शप्रीत, BA B.Ed 5th सेम। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਦ ਨਿਊ ਸ਼ੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਥੀਓ, ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਦ ਨਿਊ ਸ਼ੀ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਸ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਘੱਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਘੱਟ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰਤ। ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਰੱਸੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਲਏ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਰੱਸੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਲਏ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਨਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਾਭਾ ਗਿਆ ਸਿਖਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਨਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਸਿਖਾ। ਫਿਰ ਐਸੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਆਖੀਏ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਹਰ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਔਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਜੀ, PT ਊਸ਼ਾ ਜੀ, ਮੈਰੀ ਕੋਮ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵਧਾਇਆ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹਰਨਾਸ ਸੰਧੂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਧੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 15 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਔਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀਏ? ਔਰਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਵੈਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਡੈਕਲਾਮੇਸ਼ਨ ਇਵੈਂਟ ਖਤਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ BCom ਸੈਮ 3rd ਆਪਣੀ ਪੋਇਟਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਯੂਥ ਆਈਕਨ ਟੌਪਿਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਯੂਥ ਆਈਕਨ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਯੂਥ ਆਈਕਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਆਈਕਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ 10 ਲੱਖ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ 40 ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਥ ਆਈਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ।
जब दूर से दरिया के, जब दूर से दरिया के किनारे नजर आए, डूबे हुए सरसा में प्यारे नजर आए, ये देख के बिगड़े हुए सारे नजर आए, बिफरे हुए सतगुर के दुलारे नजर आए। कहते थे इजाजत ही नहीं है हमें रन की, मट्टी तक उड़ा सकते हैं दुश्मन के चमन की। जब किला में उतारी थी, जब किला में उतारी थी सतगुरु की सवारी, वाहेगुरु की फतेह दलेरों ने पुकारी। वो हुमा शेरों का वो आवाज थी भारी, थर्रा गया चमकोर हुआ जलजला तारी। सकते में खुदाई थी तो हैरत में जहां था, नारा से हुआ चरक भी साकन ये गुमा था। लेट गए कुछ खाक पे जी पोश बिछाकर, पहरा लगे देने कई तलवार उठाकर। गोविंद भी शाबाश हुए खैमा में जाकर, देखा तो वहां बैठे हैं गर्दन को झुकाकर। वाहेगुरु वाहेगुरु है मुंह से निकलता, है तू ही तू, तू ही तू है मुंह से निकलता। करतार की सौगंध है नानक की कसम है, जितनी भी हो गोविंद की तारीफ वो कम है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुरु के लिखूं वसफ कहाँ ताबे रकम है। एक आंख से क्या बुलबुला, एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, साहिल को मंजदार को या लहर को देखे। किस सब्र से हर एक कड़ी तूने उठाई, किस शुक्र से हर एक चोट कलेजे पे है खाई। वालिद को कटाया कभी औलाद कटाई, की फिक्र में फाके में हजारों से लड़ाई। हिम्मत से तेरी सब थे सलाह तीन लरसते, जुर्रत से तेरी लोग थे ताह चीन लरसते। ओ गोविंद के दिलदार किले से निकल आए, वो देखिए सरकार किले से निकल आए। घोड़े पर हो सवार किले से निकल आए, ले हाथ में तलवार किले से निकल आए। क्या वसफ हो उस तेग का इस तेगे ज़बां से, वो म्यान से निकली नहीं निकली ये दहां से। अरशाद हो तो सबको अकेला भगा के आऊं, अजमेर चंद आन में कैदी बना के आऊं। बाजीद खां का सर भी अभी जाके मैं उड़ाऊं, एक सिंह 1 लाख पे गालिब हुआ दिखाऊं। शाबाश कह के सतगुरु फौरन खड़े हुए, जुर्रत पे पहरेदार की वो खुश बड़े हुए। चमक है मेहर की चमकोर तेरे जर्रों में, यहीं से सितारे बन के गए शमा के लिए। गोविंद के लगते जिगर अजीत जुझार, बस फलक पे एक यहाँ 2 चांद हैं जिया के लिए। छाया हुआ दीवान पे अब गम का समा है, बस खत्म शहीदों की शहादत का ब्याह है। हिंद में एक ही तीर्थ है यात्रा के लिए, हिंद में एक ही तीर्थ है यात्रा के लिए। कटाए बाप ने बच्चे जहाँ खुदा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे जहाँ खुदा के लिए। धन्यवाद। ਨੈਕਸਟ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਬੀਕਾਮ 5th ਆਪਣੀ ਪੋਇਟਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਇਹ ਨਾਰੀ। सुप्रभात, मेरा नाम वैशाली है और मैं बीकॉम सेमेस्टर 5 की छात्रा हूँ। आज की प्रतियोगिता के दिए गए विषय भारतीय नारी को सशक्त बनाने का एक भविष्यवादी दृष्टिकोण पर अपने कुछ विचार अपने द्वारा रचित कविता ए नारी के रूप में आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ना आसानी से मिला है ना आसानी से मिलेगा, ना आसानी से मिला है ना आसानी से मिलेगा। ए नारी तुझे तेरे सम्मान तेरे अधिकार के लिए स्वयं लड़ना पड़ेगा। यूं तो नारी अधिकारों के लंबे लंबे कानून हैं, यूं तो नारी अधिकारों के लंबे लंबे कानून हैं, पर उन अधिकारों को लेने के लिए तुझे स्वयं संघर्ष करना पड़ेगा, तुझे अपनी आवाज़ खुद बनना पड़ेगा। ये समाज तुझे रोकने के लिए बहुत सी बंदिशें खड़ी करेगा। कभी तुझे देर रात घर से बाहर निकलने पर रोकेगा, कभी तेरे पहरावे पे सवाल करेगा, और कभी तो यह तेरे सपनों को पूरा कर सकने और ना पूरा कर सकने के तराजू में तोलेगा, और कभी कभी तो यह तुझसे तेरे सवाल करने के हक को भी छीनेगा। झांसी की रानी किरण बेदी, गुंजन सक्सेना जैसी महिलाओं के महान कारनामे सुनने के बाद भी यह सुरक्षा के नाम पर तुझे घर की 4 दीवारी में बंद करने की कोशिश करेगा, या फिर पति और भाई के साए में रहने को कहेगा। परंतु तू घबराना मत,
ये बंदिशें, ये बेड़ियाँ तुझे ना रोक पाएंगी। ये बंदिशें, ये बेड़ियाँ तुझे ना रोक पाएंगी। अपने इरादों को शमशीर करना, यह बेड़ियाँ खुद ब खुद टूट जाएंगी। अपने इरादों को शमशीर करना, ये बेड़ियाँ खुद ब खुद टूट जाएंगी। यदि कभी हौसला डगमगाए तो, यदि कभी हौसला डगमगाए तो याद करना, बिना टांगों के अरुणिमा सिंह हिमालय की चोटी पर पहुंच गई थी। सामान्य जूतों से अभ्यास कर हिमा दास विश्व विजेता बन गई थी। मैरी कॉम, दंगल गर्ल्स, कल्पना चावला की हौसलों की उड़ान देख, बस तू आगे बढ़ती रहना, आगे बढ़ती रहना। यदि कभी तेरा सामना समाज के असुरों से हो, जो तुझे कमज़ोर समझकर अपनी हवस पूरी करने की चेष्टा करे, तो याद करना, अपनी शक्ति को स्वयं पहचान कर चंडी की तरह प्रहार करना। अपनी शक्ति को स्वयं पहचान कर चंडी की तरह प्रहार करना। आत्मरक्षा के लिए तू स्वयं ही काफ़ी है, यह सबको दिखा देना, यह सबको दिखा देना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम से कुछ तो सुधार हुआ है। चलो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम से कुछ तो सुधार हुआ है। आज देश की बेटी ने पढ़ लिख कर हर क्षेत्र में नाम रोशन किया है। लड़कों को कड़ी टक्कर दे आगे बढ़ते हुए अपनी काबिलियत को साबित किया है। बस इसी गति को बरकरार रखना। क्या पता मुख्य न्यायाधीश, सेना मुखी के पदों पर जल्द ही नाम तेरा हो। क्या पता मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की उपाधि नारी जल्द ही तेरे नाम हो। बस इसी दृढ़ संकल्प से तू आगे बढ़ती रहना, तू आगे बढ़ती रहना। दिखा देना कि घर के साथ साथ तू देश भी चला सकती है और अपनी काबिलियत के दम पर हर मुकाम पा सकती है। दिखा देना कि घर के साथ साथ तू देश भी चला सकती है और अपनी काबिलियत के दम पर हर मुकाम पा सकती है। अखंड तेरी शक्ति है, प्रचंड तेरी काया है। सर उठाकर देख नारी, यह वक्त तेरा आया है। सर उठाकर देख नारी, ये वक्त तेरा आया है। धन्यवाद। नेक्स्ट स्टूडेंट है कनीस, एमकॉम पार्ट 1। सुप्रभात सभी को। मैं कनीस फातिमा, एमकॉम सेमेस्टर फर्स्ट की छात्रा, आज आपके सामने माई ड्रीम इंडिया भाव मेरा आत्मनिर्भर भारत पर कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जिए थे अब तक दूसरों के सहारे, जिए थे अब तक दूसरों के सहारे, अब खुद आगे बढ़कर दिखाना है। जलने वालों से हमें क्या करना है, हमें तो अपना आत्मनिर्भर भारत बनाना है। जो हम बोला करते थे दूसरों की भाषा, जो हम बोला करते थे दूसरों की भाषा, आज अपनी भाषा भी उनको सिखाना है। जलने वालों से हमें क्या करना है, हमें तो अपना आत्मनिर्भर भारत बनाना है। ए सोने की चिड़िया, अब तुझे सोने का अंबर बनाना है। अपने विकास के मधुर गीत सबको उड़कर सुनाना है। क्योंकि जलने वालों से हमें क्या करना है, हमें तो अपना आत्मनिर्भर भारत बनाना है। सरकार की दिशा पर चलते हुए अपने देश को प्रगति की ओर ले जाना है, क्योंकि हमें तो अपना आत्मनिर्भर भारत बनाना है। वतन के लिए जीते हुए उस पर ही मर मिट जाना है। हर लोकल के लिए वोकल हमें बनकर दिखाना है। क्योंकि जलने वालों से हमें क्या करना है, हमें तो अपना आत्मनिर्भर भारत बनाना है। आओ अजर लिखें अमर लिखें, अजर लिखें अमर लिखें, भारत को आत्मनिर्भर लिखें। देश लिखें, शक्ति लिखें, संभाव लिखें, भक्ति लिखें। खास लिखें या आम लिखें, भारत को आत्मनिर्भर लिखें। भाव लिखें या दाव लिखें, संकेत लिखें या सुझाव लिखें, स्वर्णिम भारत का एक पैगाम लिखें। शुरू लिखें या शिखर लिखें, शुरू लिखें या शिखर लिखें, अपने वतन के लिए एक पैगाम लिखें। क्योंकि जलने वालों से हमें क्या करना है, हमें तो अपना आत्मनिर्भर भारत बनाना है। थैंक यू। नेक्स्ट है शिवानी, एमकॉम पार्ट 1, महिला सशक्तिकरण पोइट्री पेश कर रहे हैं। सुप्रभात, मैं शिवानी आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है महिला सशक्तिकरण। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की
समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियाँ समझना इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियाँ समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियाँ पिघला कर बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों का हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कब कब आएगा, चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कब कब आएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। धन्यवाद। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ 2 ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਨਰਸ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡੈਕਲਾਮੇਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵਿਨਰ ਨੇ ਉਹ ਹਨ ਈਸ਼ਾ ਛਾਬੜਾ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੋਇਟਰੀ ਰੈਸੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਨਰ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਨਰਸ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਨਰਸ ਦੇ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਵਿਪਨ ਸੁਮਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ।